So my name is Randolph Beaudry. I'm a professor at Michigan State University. I've been working in the area of post-harvest physiology and technology for about 30 years, but recently within the last 5 years I've begun to work on a project with a good friend of mine and a colleague, Dr. Sangeeta Chopra from the Indian Agricultural Research Institute, on a project where we're extracting energy from the sun to provide cooling for farmers. And this particular project is in Rajasthan near Pacholia, and our good friend Jitendraji here has been instrumental in establishing this particular project at this location. And we're joined by his wife, who is here for the inauguration of this facility. So this facility here is the first of its kind in the world, using solar power to directly cool produce that is brought to us by our farmers without a grid, without batteries, and with the additional benefit of having evaporative cooling on the surface of the structure to provide additional, I would say, cold cooling, yeah, but also some the ability to cool when the conditions aren't right for solar power cooling. So it's robust, it's sustainable, has a very low carbon footprint. मेरा नाम संगीता चोपड़ा है और मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और ये हमारे पीछे 2 टन का सोलर रेफ्रिजरेटेड इवेपोरेटिवली कूल्ड स्ट्रक्चर है, जो अंदर टेम्परेचर्स 8-9 डिग्री करता है, जब बाहर 45 डिग्री है, बिना बिजली के और बिना बैटरी के। ये किसानों के लिए है एज ऑन फार्म स्टोरेज स्ट्रक्चर। ये हमारा प्रोजेक्ट है USAID फंडेड, और इसमें हमारे पार्टनर हैं डॉक्टर रैंडोल्फ बॉड्री, प्रोफेसर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, और एक डॉक्टर नॉर्बर्ट म्यूलर, वो भी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में है, हमारे साथ एसोसिएटेड है इस प्रोजेक्ट में, और मिस्टर जितेंद्र चतुर्वेदी जो हमारे FPO के साथ रिलेटेड है और कृषक विकास संस्थान के CEO हैं, और इनकी वाइफ भी यहाँ पे है, क्योंकि आज यहाँ पे इनॉग्रल हो रहा है इस स्ट्रक्चर का, तो खूब सारे किसान आए हैं और इसे देख रहे हैं। ये पैनल्स जो आप पीछे देख रहे हैं, ये 14 सोलर पैनल हैं, जिस पे ये स्ट्रक्चर ठंडा, सिर्फ सूरज की गर्मी को लेके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके कमरा ठंडा रखता है। तो वो हम आपको आगे चल के वहाँ दिखाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये बैटरी लेस है और इसमें ग्रिड पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें बैटरी और ग्रिड दोनों नहीं है, तो ये यहाँ के किसानों के लिए या जो गाँव में जो किसान हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। साथ में जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जो किसान हैं उनके लिए भी ये बहुत आगे लाभदायक बनेगा। आइए हम देखते हैं आगे इस स्ट्रक्चर को अंदर से। To extract energy from the sun, we need solar panels which provide the electricity, but that electricity has to be converted, and one of the ways of doing that is to use what we call an inverter. This is a very special inverter that allows us to extract that energy without batteries and without tying to the grid. So a simple process, but very difficult to accomplish without the complex electronics in this particular unit. जो सोलर पैनल्स आपने देखे हैं, उससे जो बिजली बना रहा है वो ये एक इन्वर्टर है। ये स्पेशल इन्वर्टर है बिकॉज ये बिना ग्रिड के, मतलब बिना बिजली के और बिना बैटरी के चलता है। सोलर पैनल से बिजली कन्वर्ट करता है और आगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलाता है। So this is a fabric wall. This wall is wet and it cools down the structure and allows us to use a smaller solar grid, solar panel, allows us to use a smaller inverter, and allows us to get to lower temperatures at a lower price. So we wet this product, this fabric, with some irrigation tubing at the top, and it stays 10 to 15 degrees cooler than the outside temperature. इसमें ये स्पेशल कपड़ा है जो लगा है, और इस कपड़े में पानी है, और इस कमरे की दीवार ही ये एक जाल है और ये कपड़ा है। इस कमरे की ये दीवार है, इसलिए ये स्पेशल है, और ये पानी में भीगा हुआ है। जब पानी ऊपर इरिगेशन ट्यूबिंग लगी है, सिंपल, कम पानी लेता है, और जब जब ये पानी सूखता रहता है तो कमरा ऐसे ही ठंडा हो जाता है। जब कमरा ऐसे ही ठंडा हो जाता है तो लोअर कैपेसिटी के पैनल्स चाहिए और लोअर कैपेसिटी का रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहिए, क्योंकि आपने कमरा पहले ही ठंडा कर दिया 10-12 डिग्री। So we put in one particular innovation that is unique. We take the sunlight that we're collecting at the top of this structure
and we interpret that sunlight and allow it to regulate the amount of energy being directed to the compressor. So when the sunlight is low, the compressor demand is low. When the sunlight is high, the compressor demand is high. That allows us to extract more energy from the sun more efficiently. इसमें ऐड किया है जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सनलाइट से गवर्नड है और ये उतना ही पावर देता है इस सिस्टम को, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, जितनी धूप है। धूप को सेंस करता है। अगर धूप कम है तो ये कम पावर डिमांड करेगा हमारा सिस्टम। अगर धूप तेज है तो ये खूब जोर से चलेगा। तो ये धूप के साथ ये इसका फीडबैक बनाया हुआ है ताकि ये सही चले। So this project is also a research project. So we collect information about the function of this system. So we collect the grid. Well, we don't have grid. We collect the solar. In AC, we have it in DC, so the direct solar current. So that coming from the sun, and that going to power our refrigeration system. But there are many other things that we monitor on a daily basis, and that information is then relayed back to us across the world at the campus of the Indian Agricultural Research Institute, as well as Michigan State University. And we do that by linking up with this system here called HOBO. So this system here allows us to communicate across the world. People who are in the public can collect some of that data or see some of that data, and then we can also use that data to understand how better to operate this facility. ये फार्म में बना है लेकिन हमारा रिसर्च भी इसमें साथ साथ हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो पैनल, इसमें ग्रिड नहीं है। ये आप देखते हो ग्रिड वोल्टेज 0, ग्रिड करंट 0। तो लेकिन कभी अगर ग्रिड लगाना हो तो इसमें प्रोविजन है, आप ग्रिड लगा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जैसे इस गांव में बिजली नहीं है तो यहाँ सब 0 है। लेकिन सोलर पैनल्स का यहाँ पे आपको दिखेगा डीसी सोलर पैनल का वोल्टेज और वो करंट। तो 6 एम्पियर धूप से आ रहा है और ये 294 वोल्ट्स धूप से आ रही है। ये सीधा पैनल से आ रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है और ये हमारा कितना, ये 6.7 एम्पियर करंट और ये हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम 6.7 एम्पियर ले रहा है। तो ये पूरा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, पंप है, लाइट है और एक बोर्ड है जो हमने मोटर दी हुई है कि पैनल धोने के लिए, वो सारा का सारा इसी सिस्टम से, सारा का सारा सोलर पैनल से ही चलेगा। और ये सारा जो डेटा है हमें, ये ऊपर आप देख रहे हैं लगा हुआ होबो का ये ट्रांसमिशन सिस्टम है। इसमें सारा डेटा जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब मुझे मिलेगा ऑनलाइन और मिशिगन स्टेट में मिलेगा। और इसमें हमने एक डैशबोर्ड बनाया है कि जो पब्लिक के लिए, कि सारा पब्लिक इसको देख सकती है, जिसमें हमने डाला है कि अंदर का टेम्परेचर क्या है और बाहर का टेम्परेचर क्या है, ये कोई भी देख सकता है। Is where we generate our refrigerative abilities. So this is a simple air conditioner that you might find in an apartment building. This unit is manufactured by Gree, which we find to be a very robust, very forgiving system that we're able to adapt for this particular application. So the compressor is here, and inside is a blower that allows for the cooling of the room, as well as some additional innovations that we'll show you in a moment. सिस्टम है और इसमें कुछ हमने डिजाइन चेंजेस किए हैं, बट ये ग्री कंपनी का है और ये बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है जो हमने इस अपने स्ट्रक्चर के लिए यूज किया है। और इसमें हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि हमने क्या चेंज किया है, बट अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और बहुत अच्छे से काम करता है। अंदर का टेम्परेचर 7 डिग्रीज है, 7 डिग्रीज, और बाहर का टेम्परेचर आप, ये सिर्फ यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए है कि एक आधा हमने दिया हुआ है कि आप देख लो क्या है। अदरवाइज अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर हर आधे घंटे में, हर आधे घंटे का डेटा हमें ऑनलाइन। Insulation on the room, so the doors are well insulated with simple polystyrene or styrofoam. How you go through? तो ये है इंस्टॉलेशन, लो कॉस्ट इंस्टॉलेशन। A very innovative way of taking the energy, the cooling energy, from the outside to the inside. We first run the refrigerator coil into this water here.
This water is very cold and it's pumped up using a pump powered by the solar panels. It's pumped up into this overhead system that you see up here. And it flows downhill basically until it runs back down into this drum. So it's a complete cycle. That water is our battery. That water serves to keep this structure cool at night when there's no sun for power for running the refrigeration system. Now the innovation is it's partly cooled by this, but also we're at the same time running this system, which is the normal air conditioning system that you would see, but we have overridden the control systems in this so that it no longer is 61 degrees Fahrenheit, but rather as low as 7 degrees Celsius. 7 degrees Celsius, 5 degrees Celsius, which would be about 50 degrees Fahrenheit, Right. or less, 45 degrees Fahrenheit. So very good temperature control. The walls are very simple structures of just, we call it thermocol, Yeah. thermocol or styrofoam that have been put up and then sealed with urethane foam. And it's यहाँ पे इनोवेशन ये है कि आप देख रहे हैं कि जो रेफ्रिजरेंट है पहले इस पानी में आता है और ये पानी बहुत ठंडा है, 1-2 डिग्री पहुंच जाता है क्योंकि रेफ्रिजरेंट सीधा इसमें आ रहा है। तो ये जो पानी है ये इसकी इनपुट लाइन है और ये ऊपर जो रिजर्वायर है इसमें से पंप हो रहा है पूरा, और ये जो पंप है वो भी सोलर पैनल से ही चल रहा है और नीचे से पंप होके ऊपर से ये वापस आ जाता है इस ड्रम में। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, पानी रीसर्कुलेट हो रहा है। लेकिन ये पानी ठंडा है तो ये हमारी वाटर बैटरी है। रात को ये जो ठंडा पानी है ये कमरा ठंडा रखता है जब पैनल का पावर नहीं है। इसके अलावा ये आप आगे देखेंगे कि ये जो रेफ्रिजरेंट है ये नॉर्मल एयर कंडीशनिंग जो है, जो हवा ठंडी कर रहा है उसमें चला गया। तो 2 तरह की इसमें हमने एडिशनल मतलब 2 तरह का वो डाला है। एवेपोरेटर कॉइल को स्प्लिट कर दिया है, पानी भी ठंडा करेगा और हवा भी ठंडा करेगा और दिन और रात दोनों टाइम ठंडा। टेम्परेचर यहाँ दिख रहा है ये 61 फ़ारेनहाइट अब नहीं है। जैसे आपने देखा था अंदर का टेम्परेचर 7 डिग्री 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि अराउंड 50 फ़ारेनहाइट है। इसको हमने ओवरराइड कर दिया है अपना वो इलेक्ट्रॉनिक्स लगा के, तो ये और नीचे कर दिया हमने टेम्परेचर। और ये जो दीवारें हैं ये लो कॉस्ट थर्मोकोल है, 2 इंच मोटी दीवार है, इसको हमने फोम से टाइट किया है और ये एकदम एयर टाइट है, तो इसलिए अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है जब बाहर बहुत गर्म। ये टेम्परेचर सेंसर है जो अंदर का टेम्परेचर बता रहा है, जो बाहर आप देख पा रहे थे जो 7 डिग्री